we have the topic at hand is special economic zones. It's a very important topic from the infrastructure point of view in economics. This forms the part of GS3. GS3 में कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. Now what are special economic zones? First of all, why news? Because the Ministry of Commerce and Industry has asked the Ministry of Finance, Department of Revenue. Now I have always stressed upon the fact that you should always try to remember the departments of the ministries, because it is mentioned in the syllabus itself, departments and ministries. Especially with the finance ministry, it is very important which ministry, which department publishes the economic survey, which department makes the budget, which department is important for which purpose. For finance ministry, it is indispensable that you remember them. ठीक है. Now Ministry of Commerce and Industry is now very important. Department of Revenue के पास क्यों गए हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि why has the Ministry of Commerce and Industry gone to Ministry of Finance, Department of Revenue within the Ministry of Finance to allow the non-export manufacturing units to operate within the SEZs. तो issue at hand, what is the topic, what is the current affairs, क्या है इसमें कि Ministry of Commerce and Industries किसके पास गए हैं? Ministry of Finance, Department of Revenue के पास गया है, so that they have been asking Ministry of Finance to allow non-export. Non-export is the very important keyword here. Manufacturing units, ठीक है, manufacturing units to operate within the established special economic zones. मतलब Ministry of Commerce and Industry पूछ रही है या रिक्वेस्ट कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि भैया हमें अलाउ कर दो कि हम अपनी उन इंडस्ट्रीज को जो कि नॉन एक्सपोर्ट हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऑपरेट कर सकें. अब क्यों ऐसा है? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक रोड्स, ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, electricity is one of the very important input side for the manufacturing units. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमें नॉन एक्सपोर्ट क्यों? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ही बना है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है, दिस इज इन लाइन विद द बाबा कल्याणी रिपोर्ट सबमिटेड इन 2018. तो आई विल गिव यू एन आउटलाइन एज टू हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस होल. ठीक है, and what will be our aims of studying this special economic zone and what shall we be dealing with in the whole lecture. ठीक है, the first one is कि what is special economic zone, SEZ है क्या? ठीक है, second one is evolution of special economic zone. ठीक है, the third one is what is the conflict. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, अभी यहीं पे बता देता हूं, WTO के अंडर में कॉन्फ्लिक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेके. द फोर्थ वन इज बाबा कल्याणी रिपोर्ट. ठीक है, बाबा कल्याणी रिपोर्ट, एंड वी विल बी डीलिंग विद कि बाबा कल्याणी रिपोर्ट क्यों आई 2018 में. ठीक है, 2018 में, एंड दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, वी विल बी डीलिंग विद इट कि हाउ इट केम. एंड द फिफ्थ वन इज the current status of SEZs. तो this will be the outline. तो first of all हम बाकी चीजों को इरेज कर लेते हैं. First of all, what is an special economic zone? ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये है, बहुत बेसिक डायग्राम है. अगर ये एक पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ओके, दिस इज द प्रपोजल. I would rather draw it myself. What is a special economic zone? Now, what is an special economic zone? ठीक है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर विद इन द टेरिटरी इनकम टैक्स लॉज, कस्टम लॉज सारी जगह एक जैसे लगते हैं. ठीक है,
क्योंकि वो सेंट्रल लॉज है। ये हमारा कंट्री का सदर्न पोर्शन है, गुजरात, ठीक है। दिस इज कांडला पोर्ट, ठीक है, ये मुंबई पोर्ट है, ओके। तो व्हाट इज एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेशल डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया नहीं होगा, 500 to 1000 हेक्टेयर का है, 500 to 1000 हेक्टेयर, इससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक पूरी सिटी हो जाएगी, एक बहुत छोटा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया बन सकता है। तो ये एरिया जो है इट विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोर्ट है, एक पोर्ट यहाँ पे है, ये पोर्ट, दिस पोर्ट इज नॉट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दिस पोर्ट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो हुआ ये कि इस पोर्ट के थ्रू जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, उस इंपोर्ट पे, और इस एक्सपोर्ट के थ्रू जितना भी इंपोर्ट, इस पोर्ट के थ्रू जितना भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है, इन दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में एक डिफरेंस होगा कि जहां पे जो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है वहां पे कस्टम लॉज कंट्री के लागू होंगे, लेकिन इस टेरिटरी में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वहां पे कस्टम लॉज हमारे इंडिया के लागू नहीं होंगे। दैट इज दिस टेरिटरी, दिस डिलिमिटेड टेरिटरी डज नॉट हैज एनी एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कस्टम लॉज विद इन द होल एरिया, ओके। मतलब यहां पे इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट यहां नहीं जा सकता, मतलब दिस टेरिटरी विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ द कस्टम टैक्स, ओके। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एफडीआई up to 100% is allowed. FDI is up to 100% is allowed within this special economic zone. मतलब अगर कोई यूएस की कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाहती है यहाँ पे, तो they don't have to seek any approval from the government of India कि हमें अप्रूव कर दो। और अगर फॉर एग्जांपल अगर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बाकी कंट्री में, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस में 100% अलाउ कर दिया है, अभी से पहले तक 75% 50% था। इन दैट केस अगर इंश्योरेंस सेक्टर में बाकी पूरी कंट्री में, दिल्ली में अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है तो दिल्ली में तो लॉज जो होंगे वो इंडिया के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। कि इंडिया में अगर आपको कोई मतलब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर कहीं भी पूरे इंडिया में अगर आपको एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस में अगर आपको एफडीआई करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, तो आपके ऊपर एक लिमिट सेट थी कि 50% से ज्यादा नहीं ला सकते हो। अगर वही कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, ठीक है, लेकिन वो अगर किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है, SEZ में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पे किसी इंश्योरेंस कंपनी खोलती है अपनी, तो इन दैट केस वहां पे 100% अलाउड है एफडीआई, ओके। बारिंग सम स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाइक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजों को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है, ओके। दिस इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गवर्नमेंट का अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रपोजल क्या है, वो ये कह रहे हैं कि SEZ में, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि SEZ में जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं, द कंपनीज विच ऑपरेट विद इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनका मेन एम जो है वो डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करना नहीं है बल्कि सर्विंग द फॉरेन मार्केट। अब SEZ को खोलने का कंसेप्ट ठीक क्यों बनाया गया? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिया, ओके, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंसी। एक्सपोर्ट, अगर इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेरिटरीज बनाओ जहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब वो फैसिलिटीज लॉ के फॉर्म में हो सकती है, वो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग SEZ के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा लैंड वेकेंट है, बहुत सारा लैंड इज वेकेंट, बहुत सारे SEZ को प्रपोजल इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, दे हैव
the developers of the SEZ have got the permission from the government for opening up of a special economic zone, but they have not yet started functioning, है ना. तो अगर उनका SEZ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये कह रहा है कि हमारी जो नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको विद इन द SEZ ऑपरेट करने दो, लेकिन एज ए डोमेस्टिक यूनिट. कैसे? वो सेल करेंगे, सारा डोमेस्टिक सेल होगा. सॉरी, अदरवाइज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका सारा सेल फॉरेन में जाता है. इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितने भी एंटिटीज ऑपरेट कर रही हैं, all the produce, the goods and the services will be going to the foreign countries. क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस ये था कि एक्सपोर्ट बढ़ाना. ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि अब गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है कि हमारी जो नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनको इस SEZ में ऑपरेट करने की परमिशन दे दो ऑन द ग्राउंड्स कि ये डोमेस्टिक सेल करेंगे, फॉरेन नहीं भेजेंगे कोई भी चीज. अब फॉरेन नहीं भेजेंगे, दैट मीन्स दीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल नॉट बी अवेलिंग एनी काइंड ऑफ कस्टम एग्जम्पशन. ओके, डजंट अट्रैक्ट एनी टैक्स बेनिफिट्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टम टैक्स और इनकम टैक्स के जो बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनीज जो कि SEZ में ऑपरेट कर रही हैं, दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल नॉट टेक दैट. The third very important point is doesn't attract any custom duty or duty sales. Very important point for special economic zones is अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या है? ये SEZ है, इसके बाहर का जितना भी कंट्री का हिस्सा एरिया है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है. ओके, अगर कोई कंपनी SEZ में ऑपरेट कर रही है और वो इंडिया में ही सेल करना चाहती है अपनी किसी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल कांडला पोर्ट जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या गिफ्ट सिटी गुजरात इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब वहां का जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है और जितना भी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है वो बना ही इसलिए है ताकि वहां से खाली बाहर जाए, दूसरी कंट्रीज में जाए. लेकिन अगर वो लोग अगर चाहें कि हम अपना कुछ गुड इंडिया में भी सेल कर लें, कांडला पोर्ट ट्रस्ट में या गिफ्ट सिटी गुजरात में अगर कोई गुड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एंड इफ दे वांट टू सेल दैट गुड विद इन द कंट्री, देन दे विल हैव टू पे कस्टम ड्यूटी. जैसा कि उनके जैसे अगर इंडियन टेरिटरी में कोई बाहर की कंट्री से कोई इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर हम टैक्स लगाते हैं, राइट, कस्टम टैक्स. तो सेम वही टैक्स कोई कंपनी अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है और वो इंडिया में ही सामान बेचना चाहती है तो उस पर वही कस्टम टैक्स लगेगा जो कि इंडिया में इंपोर्ट होने वाले सामान पे लगता है. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का प्रपोजल ये है कि हम खाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका खाली यूज करना चाहते हैं. हम किसी प्रकार की टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का जो स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स है वो नहीं ले रहे, हम किसी प्रकार का और कोई बेनिफिट लेना नहीं चाहते अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हैं जो कि SEZs में पड़ी हुई है. एंड दिस इज इन लाइन विद द बाबा कल्याणी रिपोर्ट. अब बाबा कल्याणी रिपोर्ट क्या थी? 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रैग्ड इंडिया टू द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सेइंग दैट जो इंडिया की पॉलिसीज हैं लाइक मर्चेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम MEIS, one of the scheme that has now been replaced with RODTEP. RODTEP I have also conducted a lecture on that. If you search you'll find it. RODTEP एक स्कीम है रिमिशन ऑफ जो पहले नॉन रिफंडेबल टैक्सेस थे, अब उनको रिमिट कर दिया जाएगा. उसके पीछे पूरा एम ये है, फिलॉसफी ये है या कंसेप्ट ये है. सी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, योर प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी इजी. मेंस तो ऑफ कोर्स. तो okay, now अब what was the mechanism, what was the issue that India faced? USA dragged India to the WTO dispute settlement mechanism and said that certain USTR, okay, USTR, United States Trade Representative, United States Trade Representative एक special body है United States में which looks after the business interests of United States companies in the foreign territories. Okay, so USTR said that
इंडिया की स्कीम्स लाइक MEIS, ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी जो स्कीम्स हैं दे आर इन कॉन्ट्रावेंशन विद द WTO लॉज। WTO का जो WTO के लॉज हैं उनके कॉन्ट्रावेंशन में है। अब WTO के कौन से लॉज? WTO में जो WTO का जो लॉज है, WTO का बेसिक एम है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, ओके, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब कोई भी कंट्री ऐसी सब्सिडीज नहीं देगी, ओके। अब WTO में एक सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स अग्रीमेंट है। क्या है? सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर, AGRW अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट में ये है कि कोई भी कंट्री है वो अपनी डोमेस्टिक यूनिट्स को ऐसी सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करेगी। एनी कंट्री विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सब्सिडीज दैट डिस्टॉर्ट इट्स पोजीशन इन द मार्केट, ओके। लाइक इंडिया, ओके, इंडिया कैन नॉट प्रोवाइड such kind of subsidies to its own in manufacturing units। अगर इंडिया जो है किसी अपनी डोमेस्टिक कंपनी एक्स को कहती है कि हम तुम्हारे रॉ मटेरियल के इनपुट पे तुम्हें टैक्स सब्सिडी दे देंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल के इनपुट पे टैक्स सब्सिडी दे देंगे, तो ऑफ कोर्स इससे प्रोड्यूस्ड गुड जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज गुड्स। अब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रेमिटिंग सम काइंड ऑफ द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व। तो बाकी कंट्रीज के जो गुड्स हैं, ठीक है, बाकी कंट्रीज के जो गुड्स हैं उन गुड्स के कंपैरिजन में ये गुड ज्यादा सस्ता होगा और ये कंट्रीज में ज्यादा फ्लड कर सकता है। दैट इज कॉल्ड मार्केट डिस्टॉर्शन। अगर सारी कंट्रीज ऐसे ऐसे पॉलिसीज यूज करना शुरू कर दें तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द मार्केट। तो इसके लिए सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ठीक है, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स का अग्रीमेंट है। अब ये अग्रीमेंट ओके, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स में ये है कि कोई भी कंट्री अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऐसी सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड कर सकती कि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो जाए। ये तो हो गया सब्सिडी। नाउ व्हाट इज काउंटर वेलिंग? काउंटर वेलिंग का मतलब है कि अगर कोई कंट्री है ए, ओके, इफ द कंट्री ए इज इम्पोजिंग प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सब्सिडीज टू इट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स के गुड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में वेरी चीप है एज कंपेयर टू द सिमिलर अदर गुड्स, ठीक है। अगर एक्स कार बनाती है और इसकी कारें बाकी कारों की कंपैरिजन बहुत सस्ती हैं तो लोग यही कंपनी की कारें खरीदेंगे, राइट। तो दैट विल बी अ मार्केट डिस्टॉर्शन, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज ऐसे पॉलिसी यूज करना शुरू कर दें तो दैट विल बी अ लॉस टू एवरीवन, ठीक है। तो अगर ए इज अ कंट्री, ठीक है, एंड एक्स इज अ कंपनी, if A is providing such subsidies which are distorting the market, then any other country X या B can impose countervailing measures. Countervailing measures मतलब trade tariffs and quota barriers. Tariff and quotas, ठीक है। अब ये countervailing measure क्या हुआ? To counter the distorting subsidy, ठीक है, टू काउंटर द डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। अगर इस कंट्री का 50 रुपए में कोई सामान मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और वही सामान बाकी कंट्रीज 70 रुपीज में बेच रही हैं, तो दिस प्रोडक्ट विल फ्लड दिस कंट्रीज मार्केट। उससे बचने के लिए द बी कंट्री हैज अ राइट टू इम्पोज काउंटर वेलिंग मेजर्स लाइक इम्पोजिंग अ टैरिफ ऑन दैट या प्रोवाइडिंग अ कोटा, ठीक है, कि आइदर कि तुम्हारा 50 रुपए का गुड है, आप इस पे 20 रुपीज का टैक्स लगा रहे हैं, हम आप पे इंपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है हमारे मार्केट जो 70 रुपीज है उसके साथ में सिंक हो जाए। अब जब दोनों प्रोडक्ट 70 रुपीज के हैं तो कंज्यूमर विल बी एबल टू चूज विच वन इज बेटर बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी, बेस्ड ऑन द
performance of the good rather than the price of the good. Okay, this is called subsidy and countervailing measures. Country A is providing subsidy, country B is countervailing with the tariffs and quotas. This is called subsidies and countervailing measures. तो हुआ ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर व्हाट, दे आर प्रोवाइडिंग लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इट इज प्रोवाइडेड विद 100% टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 5 years. 100% टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 5 years. ठीक है, मतलब एनी if one opens a manufacturing unit within special economic zone, तो that person does not have to pay any kind of tax to the government for 5 years. However, in 2011, ठीक है, in 2011 a minimum alternate tax was imposed. Now what is minimum alternate tax? Minimum alternate tax is very simple. अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें कि irrespective of what profit you are earning, ठीक है, बेस्ड ऑन द एसेट साइज आपको एक मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा वेदर यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट और नॉट. सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, और ये कंपनी कह रही है कि भाई मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है. कॉर्पोरेट टैक्स इज लेविड ऑन द प्रॉफिट. तो अगर ये कंपनी कह दे कि मेरे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं टैक्स कहां से दूं, है ना. इन दैट केस आपके एसेट्स का जो साइज है, एसेट क्या होता है, आपके पास जितना फर्नीचर है, आपके पास जितनी लैंड है, आपकी जितनी बिल्डिंग्स का वैल्यू है, उन सारी एसेट का साइज जो है उसकी वैल्यू के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक % ऑफ टैक्स देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. तो ओके, पहले 2011 से पहले मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी नहीं लगता था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, लेकिन अब क्या पॉलिसी है कि अप टू 5 years 100% टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स मतलब इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, ओके, अगर कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके. लेकिन 2011 के बाद MAT इंपोज कर दिया गया. आपको इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा जिसका रेट 25% का अराउंड है, लेकिन आपको एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा जो कि आपके प्रॉफिट के बजाय या आपके प्रोडक्शन वैल्यू के बजाय या प्रोडक्शन वॉल्यूम के बजाय आपके किस पे डिपेंड करेगा, एसेट साइज पे. ओके, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. और दूसरा बेनिफिट क्या है कि नेक्स्ट 5 years के लिए 50% एग्जेम्पशन. ओके, मतलब 0 to 5 years के लिए 100% एग्जेम्पशन और 5 to 10 years के लिए 50% एग्जेम्पशन ऑन द इनकम टैक्स और द कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अब इन टैक्सेस की वजह से यूनाइटेड स्टेट सेड दैट these taxes are distorting these taxes are trade distorting in the sense that they are subsidizing, the government of India is subsidizing the goods produced by the companies within the special economic zones to such an extent that the goods produced by other countries companies are not in competition with these goods. ठीक है, and that is a trade distortion. इसलिए United States trade representative dragged India to WTO dispute settlement mechanism, and WTO gave a verdict in the favor of United States. India actually lost the case. India lost the case, due to which India had to form a committee. That committee is called Baba Kalyani Committee, and that committee submitted its report in November 2018. और उन्होंने कहा कि आप जो rationalization करिए taxes का, और although it was formed to evaluate the compliance of special economic zones with respect to WTO, but later it was said that this committee gave recommendations on many issues like the amount of land that is vacant. ठीक है, बहुत सारे issues पे इनका recommendation आया, और that Baba Kalyani report is very important for special economic zones. Okay. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया. 1965 में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज स्टार्टेड इन पोर्टो रिको. पोर्टो रिको इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री इन 1947. ओके, 1960s में ताइवान और आयरलैंड में स्टैब्लिश हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. 1980s में चाइना एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शेंजन. ठीक है, शेंजन इज स्टिल फंक्शनिंग एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और शेंजन में नाइकी से लेके
एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स और सब कुछ वहां मैन्युफैक्चर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट ये भी हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, दूसरा हुआ कि टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस भी डेवलप हुई, और तीसरा हुआ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ जिसकी वजह से हमारे गुड्स पूरे वर्ल्ड में फैले, और हमारा जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो भी बिल्ड हुआ अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक कैपिटल। ओके, तो India also thought that India can also replicate this within the Indian framework. तो 1965 में कांडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज एस्टैब्लिश्ड, बट इट वाज ओनली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं थे इसमें। 2000 में पॉलिसी ऑन SEZ वाज अनाउंस्ड। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया went to China, he went to Shenzhen actually, and he saw that this is a good thing that should be implemented within the country. तो 2000 में पॉलिसी ऑन SEZ was announced and Kandla port was converted from export processing zone to special economic zone. In 2005, SEZ Act was brought. SEZ Act provided a statutory backing to the existing special economic zones in India. Okay. Now, these are the benefits of operating within an SEZ, as I told: duty-free import, 100% income tax exemption on export, ठीक है, from SEZ unit for 5 years, and for the next 5 years 50%. Supplies to the SEZs are zero rated under IGST. That means if anyone any kind of procurement that an SEZ operating unit is doing from the country, ठीक है, तो IGST मतलब एक तो है स्टेट जीएसटी, एक है सेंट्रल जीएसटी, एक है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड मतलब वो सारे प्रकार का मूवमेंट ऑफ गुड्स या वो सारे प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट इज गोइंग ऑन विद इन द स्टेट्स, दैट इज, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड आईजीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी के अंडर में कंसिडर किया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि एसईजेड इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी, तो उसको ऑफकोर्स एसजीएसटी या सीजीएसटी में नहीं डाल सकते। आईजीएसटी में जीरो रेटेड है, मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता अभी, रेट इज जीरो। सिंगल किस पे? सप्लाईज। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि टायर बनाती है, टायर के लिए जितना भी सप्लाईज कंट्री से प्रोक्यूर करना है तो उस पर जीएसटी का रेट जीरो होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि एक ही फॉर्म भरना है आपको, एक ही जगह सारी प्रकार की आपको क्लियरेंस, वेदर इट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वेदर इट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेदर इट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लाइक एनी अदर मिनिस्ट्री, तो जितनी मिनिस्ट्रीज का जितना भी क्लियरेंस होगा वो सब एक जगह से मिल जाएगा। Custom tax applies if the entity that is producing within an SEZ is trying to sell that produce within the country. अगर आप SEZ में ऑपरेट कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू सेल इट टू द फॉरेन कंट्री, तो कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं, कस्टम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी, इंपोर्ट टैक्स भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। बट इफ यू आर ऑपरेटिंग विद इन SEZ एंड यू आर ट्राइंग टू सेल विद इन अ कंट्री, है ना, विद इन द कंट्री यू आर SEZ इज लोकेटेड, तब आपके ऊपर कस्टम टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ फॉरेन एंटिटी। ओके, the other important point is from 2020 government has amended the minimum required from 500 hectare to 50 hectare. पहले क्या था, अगर किसी को SEZ डेवलप करना है तो आपको 500 हेक्टेयर की लैंड की जरूरत होती थी, अब उसको 50 हेक्टेयर कर दिया गया है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ SEZs ऑपरेटिंग इन द कंट्री एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एन SEZ. MAT imposed since 2011, as I told. License for import is not required. Okay, and 100% FDI allowed in manufacturing. These are some benefits of special economic zones. Now, issues like WTO challenge, we have it in the form of subsidies and countervailing measures. 25,000 hectare of land is lying vacant, despite the fact that the government has given a lot of approvals for SEZs, but still 25,000 hectares of land is around lying vacant, matlab that is not utilized. Okay, lack of flexibility to utilize the land for other purposes. The SEZ approval,
Okay, that comes with a very strong limitations upon how the land can be used. Okay, SEZ contains two kind of land. The land of SEZ can be used for two kind of purposes basically. The first one is manufacturing, yeah, process, yeah, business activity. The second one is for residential purpose as well. The but in what kind of manufacturing is taking place and all these, there are a lot of limitations on that, due to which जो the land का जो use करने की flexibility है वो SEZs के पास ज़्यादा नहीं है. Okay, domestic sales attract custom tax. Okay, implementation challenges of single window clearance, although it has been said that it has been started to like fast track the procedure, but it is the implementation challenges remain as in other cases as well. Imposition of minimum alternate tax MAT since 2011. Okay, तो अगर minimum alternate tax impose कर दिया है तो the entities that are operating in SEZs are not getting the right kind of tax incentive. Okay, this I hope you understood the whole classification of SEZs, the evolution of SEZs, and what kind of challenges special economic zones are facing, like WTO issues, है ना, subsidies and countervailing measures. Okay,